Good morning, everyone. Welcome back to ASR NCRT Decoder. So, here I am again with the chapter Respiration in Plants, and this is of class 9th chapter. This chapter is important for everyone, as you know, but here the special book is of Sacred Heart School. So, have a look of it. In previous chapter, we learned about what the respiration is and what the things is going on. So now come here, the ATP point was there that we didn't declare it. Okay, so what is ATP? The energy currency of the cell. All activity inside the living cell need energy which is available in a form of ATP. So the full form of ATP is the full form of ATP is adenosine triphosphate. Okay, so the adenosine is here and having 3 phosphate with it, and the bond which break down and release a energy. Okay, so as the immediate source, so immediate source is what the ATP is. Okay, hence this chemical compound ATP is described as the energy currency of the cell. Living organisms show two type of metabolic activity. First is anabolic activity, constructive or biosynthesis process. It consumes energy. So what the anabolic is? एक ऐसा बायोसिंथेटिक प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी लगती है ना. नेक्स्ट वन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस. So this is a destructive and breaking down process that give out energy for use of organism. हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें मिलती है ना. वैसे दो रेस्पिरेशन होते हैं, एनाबॉलिक रेस्पिरेशन जिसमें कि कंज्यूम होती है एनर्जी और एनर्जी को बिल्डअप किया जाता है. कैटाबॉलिक में क्या होता है कि एटीपी रिलीज आउट होता है ना. Respiration is breaking down process. So breaking down process means catabolic. So our respiration is catabolic process. Okay, respiration is a breaking down process by which a living cell oxidize organic substance. So which organic substance is there which is going to be oxidized? So that is a glucose, and release carbon dioxide, water and energy. So this is the main point. एनर्जी का बनना, एनर्जी हमारे ऑर्गेनिज्म को मिलना कैटाबॉलिक प्रोसेस में होता है. तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें मिला है दैट इज ग्लूकोज. ये कहाँ से मिला है, हम लोगों ने खाना खाया है वहाँ से मिला है ना. तो ये ग्लूकोज जो है वो बनता वो डिस्ट्रक्ट होगा और उससे क्या बिल्डअप होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में हम लोग भी वही पढ़े कि इसमें क्या होगा, चीज़ें टूटेंगी और जो एनर्जी फॉर्म होगा, है ना. Next is what? Respiration is a catabolic process of releasing energy from glucose for carrying out life process. तो that we all discussed earlier. हम लोग इसको पढ़ लिए हैं कि respiration हमारा catabolic process है. क्यों catabolic process है? क्योंकि इसमें से formation होता है एनर्जी का और हमें एनर्जी आगे काम के लिए मिलता है. Next is respiration versus burning, combustion. This is a very important question which everyone ask and everyone want to ask is कि रेस्पिरेशन बर्निंग में क्या फ़र्क है. जैसे आप रेस्पिरेशन बोलते हो कि रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो बर्निंग में भी तो एनर्जी बन रही है, बर्निंग में भी तो CO2 बन रहा है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना. Sometimes respiration is compared with a burning, such as a burning of coal. Both liberate energy. So what happened? What the similarity between it? Both liberate energy. Okay, this is the similarity. Number one similarity is both liberate energy. Both give end product CO2 and water. This is also important. So this is the point number 2, which is similarity between burning and रेस्पिरेशन. सो ये चीज़ भी आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे कि बर्निंग और रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में एनर्जी लिबरेट होता है और CO2 और वाटर भी फॉर्म करते हैं. बट दिस कंपैरिजन इज ओनली सुपरफिशियल. द डिफरेंसेस बिटवीन द टू आर एज फॉलोज. यहाँ हम लोग डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, बट द सिमिलैरिटीज आर हियर कि दोनों एनर्जी बना रहे हैं, दोनों CO2 और वाटर बना रहे हैं ना. इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, so what is it? Respiration, burning, combustion. So what the respiration is? Cellular process. respiration सेल के अंदर हो रहा है, बर्निंग सेल के अंदर तो नहीं हो रहा. हम लोग कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं ना, लेकिन रेस्पिरेशन तो हमारे सेल के अंदर होता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज अकर एट बॉडी टेम्परेचर. ये रेस्पिरेशन हमारे बॉडी टेम्परेचर पे हो रहा है ना. यहाँ पे बर्निंग में क्या हो रहा है, अकर एट हाई टेम्परेचर एट इग्निशन पॉइंट. यस ऑफ कोर्स, बर्निंग करने के लिए या कंबशन करने के लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा. टेम्परेचर हाई मतलब कितना, उनके इग्निशन पॉइंट पे. इग्निशन पॉइंट यू पीपल नो व्हाट इज इट?
इग्निशन पॉइंट मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ जलना शुरू करती है। जैसे आप देखिए, आप अगर कभी जो पूजा का जो दिया होता है वो जला रहे होते हैं, तो उस दीप में जब आप माचिस लगाते हैं तो उसकी बाती जो होती है वो जलती नहीं है, कुछ समय बाद उसमें आग लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाएगा, उस हद तक गर्म ना हो जाए कि उसमें आग लग जाए, तब तक, है ना, उसको इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। जबकि ये रेस्पिरेशन जो टूटने का प्रोसेस है, ग्लूकोज आया हमारी बॉडी में, ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहा है, वो टूटना हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ही हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंबशन में जो हमारे पास फ्यूल है उसको टूटना पड़ेगा, टूट के CO2 बनाना है, वाटर बनाना है ना, और ATP एनर्जी बनानी है, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, वट एवर एनर्जी बनानी है। तो उसके लिए टेम्परेचर इनको हाई चाहिए। अनदर वन इज, ये सीरीज में होता है, वन आफ्टर वन सीरीज में इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स होते चलते हैं। ये सिंगल स्टेप में है, बस आग लगाओ जल के बर्बाद। हमारे बॉडी में क्या होता है रेस्पिरेशन में, पहले हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज जो है वो रेस्पायर किया हमने, है ना, मतलब सॉरी ब्रीथ किया हमने, तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चला गया। देन अगेन वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल के पास जाता है, एंड देन हमारे सेल के अंदर जैसे ही वो ग्लूकोज इंटर करता है सेल मेम्ब्रेन से, तो वो पहले पाइरूवेट में टूटता है, C3 कार्बन में, एंड देन अगेन उसके बाकी प्रोसेसेस होते हैं। ये तो हमारा है ना, प्लांट्स में C4 प्लांट में अभी अलग होता है, C3 प्लांट में अलग टाइप का रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स होते हैं, जबकि यहाँ पे सिंगल स्टेप की ये बात आ रही है। नेक्स्ट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम। यस ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। व्हाई नॉट, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो ATP जनरेट कर रहा है, वो तो भाई वहाँ पे अपने हार्मोन्स सॉरी अपने एंजाइम्स का यूज़ करता है ना, जबकि यहाँ पे सिर्फ हीट चाहिए होता है इग्निशन पॉइंट पे लाने के लिए, एंजाइम्स की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अनदर मोर डिफरेंस इज दिस बायोकेमिकल प्रोसेस, दिस वन इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस है, हमारी लाइफ है और लाइफ के साथ केमिकल है जिसने मिलकर ये प्रोसेस को कंप्लीट किया। यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज लिबरेटेड एज ATP एंड सम हीट। यहाँ पे एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रहा है ATP और कुछ हीट में, लेकिन सारी की सारी एनर्जी लिबरेट हो रही है हीट और लाइट में। ठीक है, हमारे बॉडी में हीट तो बनता है लेकिन साथ में ATP बनता है, दैट इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे इनमें क्या होता है कि इनमें सब कुछ हीट एंड लाइट होता है। नेक्स्ट वन इज नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस। रेस्पिरेशन में कोई लाइट एनर्जी नहीं बनती, जबकि बर्निंग और कंबशन में लाइट एनर्जी बनती है। डिपेंड करता है लाइट किस तरह का है ना, लाइट किस तरह का है कहने का मतलब क्या है कि चाहे तो अगर वो फ्लेम बना रहा हो ना बना रहा हो, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट इज द एंटायर प्लांट रेस्पायर। यस ऑफ कोर्स द होल प्लांट रेस्पायर। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटायर प्लांट। तो भाई हमारे बॉडी में तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा नॉस्ट्रल से होता हुआ नेजल चैम्बर में जाता है एयर, फिर विंड पाइप में जाता है, फिर लंग्स के ब्रोंकियाई में ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स होता हुआ एल्वियोलाई में एंटर करके बैठता है। तो ये तो हमारे पास एक पूरा ऑर्गन का एक चैनल है जिसमें ये काम हो रहा है। प्लांट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसके हर एक सेल को अपना अपना सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीफ, स्टेम, रूट एंड इवन द डीपेस्ट सेल प्लेस्ड इन एनी रीजन रेस्पायर। हर सेल को सांस लेना है, सांस लेंगे नहीं तो फिर रेस्पिरेशन होगा कैसे? और जब रेस्पिरेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो इनको अपना सांस का, अपने ऑक्सीजन का व्यवस्था तो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन इन प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू 3 इनलेट्स। 3 इनलेट्स हैं इनके पास, तीनों इनलेट्स इनके पास ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। स्टोमेटा इन लीफ, लेंटिसेल इन स्टेम एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट। ठीक है, तो स्टेम और ब्रांचेस में तो लेंटिसेल्स मिल जाएंगे, लीफ पे आपके स्टोमेटास हो गए, एंड जो जनरल सरफेस है वहाँ पे जो रूट है वहाँ पे जनरल सरफेस से भी रेस्पायर होता है। एंड जनरल सरफेस से रेस्पायर होता है तभी तो हमें बताया जाता है कि जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो तो उसको समय समय पे कुड़ाई करते रहना चाहिए, मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट कर दें, है ना,
ताकि एयर जो है वो, हम लोग ये जानते हैं कि एयर पार्टिकल्स जो हैं वो हर एम्प्टी स्पेस को फिल करते हैं। तो जो हमारा सॉइल है, सॉइल का सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड जो सॉइल के स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में जो हम गैप क्रिएट करेंगे, जब कोड़ेंगे मिट्टी को, तो जो गैप क्रिएट करेंगे उस गैप में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन घुल जाएगा और उसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फिर बाद में ये रेस्पायर कर जाएंगे, या जो रूट है वो सांस ले लेगा। तो बोलते हैं ना, जैसे कोई भी गार्डनर बताता है या हमारे कोई बड़े हमें जो गार्डनिंग टिप देते हैं वो बताते हैं कि आप अगर मिट्टी कोड़ोगे नहीं तो पौधा सांस कहाँ से लेगा, पौधा मर जाएगा। हम सोचते हैं भाई पौधा सांस क्यों लेगा, पौधा तो स्टोमेटा से सांस लेता है। नहीं, लीफ जो है वो स्टोमेटा से सांस ले रहा है, स्टेम लेंटिसल से सांस ले रहे हैं, और जनरल सरफेस से कौन सांस ले रहा है, रूट सांस ले रहा है। ठीक है, so here it is mentioned, have a look. Plowing and a tilling of the soil create tiny air spaces around the soil particle and provide the source of oxygen for the roots. और इसीलिए हम प्लोइंग और टिलिंग करते हैं, ताकि इसको करने से क्या होगा, हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, टिनी सॉइल पार्टिकल्स, उनके बीच में एयर गैप आ जाए और उस एयर गैप में जो है एयर भर जाए। वाटर लॉग्ड एंड कॉम्पैक्ट soil does not have air space, which affect respiration of the root. During daytime, due to photosynthesis, the leaf produce oxygen, some of which is used in respiration and rest is diffused out. तो यहाँ ये important point है कि जब कभी भी हमारा प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बनाता है तो सारा का सारा ऑक्सीजन वो हमें दे नहीं देता है, वो सांस भी लेता है भाई। ऑब्वियसली सांस लेगा ना, सांस नहीं लेगा तो चलेगा कैसे। तो हमारे दिमाग में ये है कि पौधे जो हैं वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नहीं बाबा, CO2 लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन यूजुअली उन्हें सांस लेना है, ऑक्सीजन उनको चाहिए, वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बना के भी देते हैं, है ना। तो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन अ लीफ सर्व एज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रही बात कि ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है कि पौधे ने क्या किया, ऑक्सीजन का सांस लिया। ऑक्सीजन बनाए कहाँ से, पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन बनाया। जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो कुछ ऑक्सीजन का इस्तेमाल उन्होंने सांस लेने में किया, कुछ ऑक्सीजन वो हमारे लिए छोड़ आए। तो जो ऑक्सीजन उन्होंने सांस लेने में यूज़ किया, तो ऑक्सीजन के बाद बना तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने रॉ मटेरियल के फॉर्म में रख लिया है, ताकि आगे जाके फोटोसिंथेसिस करने में आसानी हो। ठीक है, एट नाइट इवन द लीव ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस वी शुड अवॉइड स्लीपिंग अंडर द ट्री एट द नाइट। सी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन हियर। जैसे हम लोग बचपन में सुनते हैं कि आप पेड़ के नीचे सो जाओगे तो आपको भूत लगेगा, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो भूत है वो परेशान कर, आप सांस नहीं ले पाओगे, आप बीमार हो जाओगे। पूर्वज आते हैं हमारे, वो मना करते हैं पेड़ के नीचे सोने से। तो रीज़न इज़ दैट कि दिन के समय में तो पौधा का 2 प्रोसेस चल रहा है, फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है वो रख ही ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो खाना बनाना है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बना के दिए नहीं, लेकिन वो हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। तो हमें लग रहा है कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नहीं लेते इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन रात के समय में ये वाला प्रोसेस तो हो नहीं रहा ना, फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स व्हाट, फोटोसिंथेसिस लाइट से होने वाला प्रोसेस, ये तो नहीं हो रहा उनमें। जब दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो ठीक था, हमें ऑक्सीजन मिल रहा था, लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस बंद हो गया है तो ऑक्सीजन मिलना तो बंद हो गया है, लेकिन पौधा बिना सांस लिए जिंदा तो नहीं रहेगा। तो पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब वो रात के समय में ऑक्सीजन सांस ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे रहा है, तब तो फिर हमारे लिए दिक्कत है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसी गैस है, हल्की या भारी, वो हल्की गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। हेंस वी शुड अवॉइड स्लीपिंग अंडर अ ट्री एट नाइट, इसलिए हम लोगों को मना किया जाता है सांस लेने से या फिर सोने से स्पेशली। हाउएवर स्लीपिंग अंडर अ ट्री ड्यूरिंग हॉट मिड डे इज डेफिनेटली गुड एज वन गेट बोथ ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड कूलनेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। और इसलिए दोपहर में आप लोगों को बोला जाता है कि भाई बड़ी आसानी से आप दोपहर में सोइए पेड़ के नीचे, क्योंकि आपको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल
मिल रहा होता है, ऑक्सीजन भी मिल रहा होता है, और साथ साथ में ट्रांसपीरेशन के कारण कूलनेस भी मिल रहा होता है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट फ्रॉम हियर, मे बी ड्यू टू सम मिस्टेक. देखिए, एट नाइट इवन द लीफ ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. रात के समय में पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. हेंस वी शुड अवॉइड स्लीपिंग अंडर द ट्री, और इसलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. बट sleeping under a tree during hot midday is definitely good as one get both oxygen due to photosynthesis and coolness due to transpiration. जबकि सोना दोपहर में हमारे लिए बहुत बढ़िया माना गया है, क्योंकि अगर हम दोपहर में सोते हैं तो हमें फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन भी मिल रहा होता है और ट्रांसपिरेशन के कारण कूलनेस भी मिल रहा होता है. लोग बोलते हैं ना कि आप लोग एसी में सो रहे हो, गर्मी के समय में पेड़ के नीचे सोना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो रीज़न इज़ व्हाट? ट्रांसपीरेशन. सो दिस इज़ द प्रोसेस चेक क्वेश्चन. ओके, सॉरी आई हैव टू रब दिस ऑल द पॉइंट्स गिवन देयर. सो आप ये क्वेश्चन एक बार बना करके देखें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को बनाएं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एरोबिक एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, बाय एवरीवन.